Hello, students. Okay, just follow me. Look at me, watch my eyes, what am I doing, and you just follow the same. Okay? Ready? Start. Okay, so you got it, what we have done. Okay, I think I'm listening the right answer from you. Okay, yes, we were doing the eyes exercise, and this relaxes our eyes muscles. And believe me, kids, these exercises are very effective in reducing your number. If you have number for your eyes, then definitely it get reduced, because I am the example for that. I had specs in the past, but the time I have followed these exercises, my number got reduced, and here I am in front of you without any specs. So isn't it amazing? यस ओके। चलो, आज का हमारा टॉपिक है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट वन में हमने बहुत सुंदर सुंदर सी सिटीज देखी थी, इंडियन सिटीज देखी थी, सिटीज अराउंड द ग्लोब देखी थी। इसी के साथ हमने एक सिटी प्लानिंग में या अर्बन प्लानिंग में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो देखा था। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, एक छोटा सा ग्लिम्स लिया था कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। ठीक है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द गवर्नेंस और द मैनेजमेंट ऑफ अ सिटी एरिया बेसिकली। ठीक है, और सिटीज क्या होती हैं हम ये भी देख चुके थे। बेसिकली अर्बन एरियाज को कौन गवर्न करता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है, या फिर म्युनिसिपल काउंसिल करती है, या सिटी काउंसिल्स करती है, राइट। और ये तीनों जो होती हैं वो एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द अर्बन एरिया डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम हमारे पार्ट वन में देख चुके थे। और इससे मुझे याद आया कि पार्ट वन में आई आस्क्ड यू थ्री क्वेश्चंस, एंड आई होप यू मस्ट हैव आंसर्ड इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दैट वीडियो। स्टिल जिन को आंसर नहीं आता था या जो रिप्लाई नहीं कर पाए, उनको मैं रिप्लाई कर देती हूँ यहाँ पे कि उन क्वेश्चन के आंसर क्या है। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज which city is called as Pink City? So the answer is Jaipur, Jaipur of Rajasthan. Okay. The second question was which city is called as the City of Lakes? And that is again in Rajasthan, and the city is Udaipur. Okay. And the third question was where does Meenakshi Amman temple is situated? So it is situated in Madurai. Okay, ठीक है. So you got your answers, and I hope you have answered in the comment section also in the of the previous video. ठीक है, तो अब हम पहले पार्ट में काफी सारी चीजें कवर कर चुके हैं, तो देखते हैं कि अब इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे। सो इन अ नटशेल, इन अ सिंगल सेंटेंस, आई जस्ट टेल यू दैट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट फुल्ली ऑन द टर्म अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, और हम पूरे इसके सिस्टम को समझेंगे बहुत इजी, बहुत मजेदार वे में। ठीक है, डायग्राम के थ्रू एंड इन अ सिंपल लैंग्वेज ऑल्सो। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। ओके, सो ऐसा कि हमारा रिचुअल है कि अगर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं इस वीडियो पे, तो उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, I should say hello new students. My name is Kanchan, and I am a law graduate. I belong to Kota, which is called as the education city of Rajasthan, and I did my graduation from Modi University, Lakshmangarh, Rajasthan itself. And I am a teacher here because of my interest, and till yet I have taught 2500 plus students, and I have experience of 3 plus years of teaching, and it's really a fun for me to be with kids, and it's really very exciting also. So here I am in front of you as an educator for Unacademy class 6, your social science teacher.
Okay, with this, let's move further. So again, our second ritual, which is where I assure you that after reading the chapter, you would be able to answer all these questions. The administrative structure of India क्या है? Then we will get to know about municipal corporation, municipal council, etc. That means city council, and boards, its head and his duties, administrative staff, functions of municipal corporation, revenue sources, water supply and cleanliness. ठीक है? So shall we begin? I guess yes. Okay. So this is the entire administrative structure of India in the diagrammatic form. ठीक है, अब इतनी बड़ी कंट्री है हमारी इंडिया, उसका देखो सिस्टम जो है, बहुत नटशेल में बोला जाए तो दिस इज द सिस्टम। कैसे? सबसे पहले नेशनल लेवल पे हमारे पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद हमने, क्योंकि पूरी कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है, यूनियन टेरिटरीज आर आल्सो देयर, बट हियर वी आर जस्ट रेफरिंग टू स्टेट गवर्नमेंट्स या स्टेट्स को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर क्या होते हैं? डिविजन्स होते हैं या डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उनके अंदर हमारी सिटीज होती हैं, सिटीज या अर्बन एरियाज होते हैं और रूरल एरियाज होते हैं। ठीक है, रूरल एरियाज में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सबसे छोटा यूनिट अपना विलेज का होता है, विलेजेस होते हैं, और बहुत सारी विलेजेस मिलकर क्या बनाती है? तहसील या ब्लॉक्स बनाती हैं। ठीक है, ये तो अपना रूरल एरिया हो गया, लेकिन हमारा टॉपिक अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरिया के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे अर्बन एरियाज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। कौन कौन सी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज, या फिर म्युनिसिपल काउंसिल, या फिर सिटी काउंसिल। अब पता है, इनका अगर आप हिंदी में नाम देखोगे ना तो आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मीन्स क्या? महानगर पालिका। ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल मीन्स क्या? नगर पालिका। सिटी काउंसिल मीन्स क्या? नगर पंचायत। तो समझ में आ रहा है? महानगर पालिका मतलब वो अर्बन एरिया जहाँ पे बहुत पॉपुलेशन रहती है, बहुत बड़ा एरिया। नगर पालिका उससे छोटा हो जाएगा, और नगर पंचायत उससे भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार समझने के लिए, एक बार डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो उन एरियाज को डील करती है जहां पर 1 मिलियन या फिर 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख पीपल, 10 लाख लोगों से ज्यादा की पॉपुलेशन है। ठीक है, और नगर पालिका या अपनी म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपैलिटी वो क्या करती है? जहां पर कि 1 लाख से 10 लाख के बीच के लोग हों। ठीक है, और 1 लाख से कम जहाँ पे होंगे वो हमारी हो जाएगी नगर पंचायत या सिटी काउंसिल। ठीक है, अब इन एरियाज का भी, जहाँ पे जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या म्यूनिसिपल काउंसिल है या सिटी काउंसिल है, इन एरियाज का भी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो हमने क्या किया? उसे और छोटी सी यूनिट में डिवाइड कर दिया, जिसको कि बोलते हैं वार्ड्स। ठीक है, वार्ड्स में डिवाइड कर दिया। अब अपन इसको आगे समझते हैं। ठीक है, ओके, सो हेयर इट इज इन फ्रंट ऑफ अस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल, सिटी काउंसिल। ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर महानगर पालिका जहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग हैं, म्युनिसिपल काउंसिल या नगर पालिका जहाँ 1 लाख से 10 लाख के बीच के लोग हैं, सिटी काउंसिल या नगर पंचायत जहाँ पे 1 लाख से कम के लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे अब ज्यादा टाइम नहीं लगाते, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। अब मैं आपको इतने बड़े बड़े शब्द तो बोल रही हूँ यहाँ पे, राइट, कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज देयर और म्युनिसिपल काउंसिल एंड ऑल, बट आर दीज रियली एग्जिस्टिंग? सो हियर इज द एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। अगर आप स्टेट ऑफ राजस्थान देखोगे तो जैसा कि पहले ब्लॉक में आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, लाइक वी हैव, like I belong to Rajasthan, so in my state there are 7 municipal corporations. ठीक है, वो 7 municipal corporations कौन कौन सी है? अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो अर्बन एरियाज हैं, ये जो 7 अर्बन एरियाज हैं राजस्थान में, उनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद हमने, हमारे पास म्युनिसिपल काउंसिल भी है। ये सब सारे नाम नहीं लिखे क्योंकि वो बहुत सारी हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है जैसे अलवर, चुरू, पाली, टोंक, हनुमानगढ़, किशनगढ़। दीज आर ऑल्सो दी अर्बन एरियाज, बट जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम की है।
ठीक है। इसी के साथ जैसे अपना स्टेट है मध्य प्रदेश का, वहां पे हमारे पास 14 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, 85 म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं एंड 235 नगर पंचायत हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ नाम नहीं है, दीज थिंग्स रियली एग्जिस्ट। ठीक है, और एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल हो, वहां पे हमारे पास 4 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, 18 म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं एंड 46 नगर पंचायत हैं। ठीक है, सो आर यू गेटिंग द आइडिया, है ना। इसी तरीके से बाकी सारे स्टेट्स का भी डिफरेंट डिफरेंट बाइफर्केशन होता है अमंग्स दीज 3 ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, चलो इसी के साथ अपन बढ़ते हैं आगे। हाँ, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, कि जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, वो कौन सी थी? वार्ड्स, है ना। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताती हूँ कि रूरल एरिया में सबसे छोटी चीज क्या थी, सबसे छोटी यूनिट या सबसे छोटा एरिया क्या था? विलेज का था। इसी तरीके से अर्बन एरिया में जो सबसे छोटा एरिया कौन सा हो गया? वार्ड्स का हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना अच्छे से और बहुत ही explicitly डिफाइन किया गया है वार्ड्स को, दैट इज अ डिविजन ऑफ अ सिटी और अ टाउन मेड फॉर द पर्पसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पर्पसेस। ठीक है, इनको इनका जो एरिया डिवाइड करते हैं ना, इसका बेसिक रीजन यही होता है टू हैव एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इन दीज एरियाज। ठीक है, क्योंकि एकदम से पूरी बड़ी सी चीज को संभालना इट्स वेरी कमसम टास्क, राइट। लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीजें करेंगे तो हम उनको एफिशिएंटली एडमिनिस्टर कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सो यू गॉट इट, आई होप यस। सो विद दिस लेट्स मूव फर्दर। अब काउंसलर इन चार्ज और कमिटीज, ये क्या होती हैं? ठीक है, अब मैं ना एक चीज आपको ध्यान दिलाती हूँ, मे बी आप में से कुछ बच्चे ऑलरेडी इस चीज को फोकस कर चुके होंगे कि मैम काउंसलर की स्पेलिंग गलत है। सो डू यू थिंक द सेम? Okay, here I have the answer to you for that. That is like, what is the difference between counselor? I'm saying the spelling COUNCILLOR and counselor COUNSELLOR. ठीक है, ये दोनों काउंसलर, दो दे आर सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ जिसका आप मेरे को आंसर करना कमेंट सेक्शन में, कि इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ना, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होमोनिम्स या होमोफोन्स? आई हैव गिवन यू दी टू ऑप्शंस। होमोनिम्स बोलेंगे कि होमोफोन्स बोलेंगे इस तरीके के शब्दों को? ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो अब मैं इसका आपको मीनिंग बता देती हूँ। काउंसलर क्या है? इज अ नाउन विच मीन्स एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, जो COUNCILLOR काउंसलर वर्ड है, ये हमारी ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउन पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता दूं, लाइक वेन एवर आई टेल यू द मीनिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक वर्ड, आई टेल यू द along with the meaning it's part of speech as well. ठीक है, I hope this like till yet you must be having a small brief idea about the part of speech in our English grammar. ठीक है, अगर नहीं है तो इट्स नथिंग, इट जस्ट मीन्स कि इंग्लिश ग्रामर में देयर आर 12 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस लाइक नाउन, प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स, prepositions, conjunctions, all these come under parts of speech। और किसी भी वर्ड को समझने से पहले, लाइक उसका मीनिंग जानने से पहले, इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो कि वो दैट दिस बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ स्पीच। Why this is so? Because ताकि whenever we are framing a sentence, it becomes easier for us to place the word at its right position। ठीक है, जैसे अगर हमारा सेंटेंस है कि लाइक वी कैन से व्हाट टू से, लाइक काउंसलर इज इन चार्ज इज कमिंग टू आवर प्लेस, लाइक टू इज कमिंग टू माय होम। तो अब काउंसलर इन चार्ज क्या है? नाउन है, मुझे पता चल गया। और एक सेंटेंस में काउंसलर मतलब जो नाउन होता है वो कहाँ लगता है? स्टार्टिंग में लगता है, राइट। सो अब क्या हुआ, जब मैं सेंटेंस फ्रेम करूंगी तो मुझे पता है कि काउंसलर इन चार्ज कहाँ लगेगा। ठीक है, जैसे अपना जो सिंटेक्स होता है सेंटेंस का, वो क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, दिस इज द थिंग। तो फिर क्या हो गया? सब्जेक्ट
मतलब नाउन या प्रोनाउन हो गया, वहां पे मैंने उसको फिट कर दिया, वर्ब में वर्ब की जगह आ गई, और ऑब्जेक्ट में अगेन नाउन या प्रोनाउन में से कोई भी चीज आ जाएगी, और उन लोगों को कुछ कनेक्ट करना है या समथिंग, तो प्रपोजिशंस एंड कंजंक्शंस अकॉर्डिंगली आ जाएंगे, राइट। तो for better framing of sentences, it is important to understand the part of speech of the word also. Okay, so this is something extra I think you got from here. So always try to apply this, क्योंकि मेरी क्लासेस में तो आपको जब भी कोई मीनिंग मिलेगा आपको साथ में पार्ट ऑफ स्पीच जरूर मिलेगा. So just get into that habit of having the part of speech and the meaning together from me. Okay. Chalo, without taking much of your time on this thing, let me tell you the meaning. काउंसलर, जो CILLOR वाला काउंसलर है, दिस मीन्स एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, कौन सा मेंबर? इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट. ठीक है. उसके बाद जो COUNSELLOR वाला है, ये भी नाउन है, लेकिन ये वो पर्सन है जो कि क्या करता है, लोगों के हालचाल सुनता है, समझता है, एंड फिर उनको एडवाइस करता है अबाउट देयर प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो ये काउंसलर अलग है और वो काउंसलर अलग है. सो इसका मतलब यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुआ है, और जो काउंसलर इन चार्ज है उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, बिकॉज ही इज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट. ठीक है. ओके, सो लेट्स रीड अबाउट इट. अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज मेड अप ऑफ अ वार्ड्स कमिटी. ठीक है, जो अब हमने देख लिया, हमारा जो अर्बन एरिया है, हमारा जो पूरा ये अर्बन एरिया है, ठीक है, ये इसको कौन हेड करते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है. ठीक है, और वो किससे बनी हुई है? वार्ड्स कमिटी से बनी हुई है. ठीक है. अब जो ईच वार्ड है उसकी एक सीट होती है वार्ड्स कमिटी में. इसका क्या मतलब है? जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक बिल्डिंग मान लो, ठीक है, उसके अंदर एक बोर्ड की कमिटी है. कमिटी का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होंगे. ठीक है. और जो ये वार्ड्स कमिटी, मतलब जो डिफरेंट वार्ड्स हैं वहां से लोग आएंगे और उस कमिटी के हिस्सा बनेंगे. ठीक है. वार्ड का मतलब हम समझ गए, जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होती हैं फॉर विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एरिया. ठीक है. तो ईच वार्ड, जो अपना हर वार्ड है अर्बन एरिया में, उसकी एक सीट होती है उस वार्ड कमिटी के अंदर. ठीक है. जो मेंबर्स हैं आर इलेक्टेड टू द वार्ड्स कमिटी on the basis of adult franchise for a term of 5 years, and these members are known as councillors. ठीक है. इसको और सिंपलर फॉर्म में मैं आपको समझाऊं तो जो हमारा वार्ड का एरिया है वहां पे क्या होगा, कुछ लोकल कमिटीज होंगी, कुछ लोकल पार्टीज होंगी, यूं समझ लीजिए. वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलो 4 लोकल कमिटी हैं एक एरिया की. ठीक है. उसमें 4 मेंबर्स खड़े हो जाएंगे, एक एक हर एक रिस्पेक्टिव कमिटी से, और फिर जो उस वार्ड के लोग जो होंगे, लोकल पीपल होंगे, वो उसमें से किसी एक को इलेक्ट करेंगे कि वो वहाँ का काउंसलर बन सके, उस एरिया का वार्ड काउंसलर बन सके. ठीक है. फिर वो जो उस वार्ड का काउंसलर बनेगा, वो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वार्ड कमेटी है उसका मेंबर बन जाएगा. ठीक है. इज इट क्लियर? ओके, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. ठीक है. कहने का क्या मतलब, जो हमने वार्ड्स बनाए, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज बनाए, उसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली 4 लोकल कमिटीज हैं या लोकल पार्टीज हैं. हर पार्टी में से एक एक मेंबर खड़ा होगा इलेक्शन के लिए. उस वार्ड के जो लोकल पीपल हैं वो उन चारों में से किसी एक को इलेक्ट करेंगे एज अ काउंसलर. अब क्या हो गया, वो वार्ड काउंसलर बन गया. ठीक है. उस वार्ड का वो काउंसलर इंचार्ज बन गया. ठीक है. अब वो जो काउंसलर इंचार्ज है, वो जो बड़ी सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उस वार्ड कमेटी का मेंबर बन जाएगा. अब सोचो कि एक अर्बन एरिया में, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली, इस अर्बन एरिया में 10 वार्ड्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 काउंसलर इंचार्ज आएंगे. हर एक वार्ड का एक ही काउंसलर इंचार्ज हो जाएगा. ठीक है. और वो जो एक ही काउंसलर इंचार्ज है वो अपनी वार्ड्स कमेटी बनाएगा उस एरिया के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर. ठीक है. आई होप यू गॉट इट. नहीं आया, ask me. I'll explain you again next time whenever I'll come live or maybe in my next video. ठीक है. Okay, moving further, counselors क्या होते हैं? These are elected people to represent their local community.
ठीक है भाई, अपने लोकल एरिया को रिप्रेजेंट करते हुए बनते हैं इन द रनिंग ऑफ देयर लोकल काउंसिल एंड दे हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेनी ऑफ द मेजर डिसीजंस दैट अफेक्ट पीपल्स लाइव्स। डेफिनेटली अब वो जो लोकल पार्टीज होती हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं, वो बेसिकली अपने लोकल एरिया को इम्प्रूव करने के लिए ही तो बनती हैं। तो वहां का कोई भी मुद्दा हो सकता है। जैसे मान के चलो इस अर्बन एरिया में 10 वार्ड्स थे अपने, ठीक है, हर वार्ड का अपना अपना मुद्दा था। जैसे एक में था कि भाई हमारे पास स्ट्रीट लाइटिंग नहीं है, एक में था हमारे पास प्रॉपर हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, एक में था हमारे रोड्स खराब हो गए हैं, एक में था कि भाई हमारा गार्बेज डंपिंग का प्रॉब्लम है। डिफरेंट इश्यूज आर देयर। तो हर कोई का जो काउंसलर इंचार्ज होगा हर वार्ड का, वो क्या करेगा, वो उस मुद्दे के ऊपर अकॉर्डिंगली रेजोल्यूशंस या सजेशंस या पॉलिसीज एंड ऑल फ्रेम करवाएगा, या अपनी बात रखेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आगे सबके सामने। ठीक है, इसी के साथ मैं और बता दूं, वो जो वार्ड कमेटी बनी ना, वो सब भी मिलकर क्या करती हैं, एक अपना हेड बन जाता है, उसको की बोलते हैं अपन मेयर। ठीक है, अब मेयर क्या होता है, बहुत बार वो जो वार्ड कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वही लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं। और इंडिया में अपने पास 8 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कि लोकल पीपल ही इलेक्ट करते हैं मेयर को भी। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, इट्स लाइक बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, देन वी हैव मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। इन 8 स्टेट्स में जो मेयर होता है वो लोगों के द्वारा, लोग मतलब लोकल पीपल के द्वारा ही इलेक्ट होता है। इसके अलावा जो बाकी अपने स्टेट्स हैं वहां पे जो ये वार्ड कमेटी के मेंबर्स होते हैं यही लोग आपस में मेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई ये अपना मेयर बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो प्राइमरी रोल होता है काउंसलर इज टू रिप्रेजेंट देयर वार्ड एंड द पीपल हु लिव इन इट। डेफिनेटली अब जो वार्ड के जो लोकल पीपल हैं उन्होंने ही तो इलेक्ट किया है काउंसलर इंचार्ज को, तो उसकी प्राइमरी ड्यूटी क्या बनती है कि भाई उनके इंटरेस्ट को सेव करे, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे एंड अकॉर्डिंगली वहाँ के कोई भी इश्यूज या एनीथिंग इज देयर ही ट्राई टू सॉल्व देम आउट एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, तो काउंसलर इंचार्ज समझ में आ गया, कमिटी समझ में आ गई। ठीक है, आई थिंक वी कैन मूव फर्दर। ओके, नेक्स्ट इज अब ड्यूटीज क्या होती है काउंसलर की। तो भाई प्राइमरी ड्यूटी तो बता दिया कि जो लोकल पीपल होते हैं उस वार्ड के, उसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इज लाइक रिप्रेजेंटिंग द वार्ड फॉर विच दे आर इलेक्टेड। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब कि भाई कौन सा इशू इम्पॉर्टेंट है रेज करना, और फिर उस इशू के ऊपर कौन सी पॉलिसीज बननी चाहिए, या फिर उसके बाद उस डिसीजन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इन एवरीथिंग लाइक वो जो डिसीजन है वो काउंसलर को लेने की ड्यूटी है। उसके बाद डेवलपिंग एंड रिव्यूइंग काउंसिल पॉलिसी। अब काउंसिल की अपनी कोई पॉलिसी बनी है या क्या, तो काउंसिल या कॉरपोरेशन उसकी कोई अपनी पॉलिसी बनी है तो उसको डेवलप कैसे करना है या फिर उसको रिव्यू कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये काउंसलर देखेगा। स्क्रूटिनाइजिंग डिसीजंस टेकन बाय द काउंसलर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और कैबिनेट। अब जो उस वार्ड कमेटी में बैठ के कोई भी डिसीजंस या फिर कुछ भी पॉलिसीज फ्रेमिंग या कुछ भी इस तरीके से काम हुआ है तो वो उसको स्क्रूटिनाइज करता है कि उसकी लोकल एरिया के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है या उसको कितना बेनिफिशियल है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि एट द एंड जो प्राइमरी ड्यूटी आएगी काउंसलर इंचार्ज की वो यही है कि उसे अपने वार्ड का या अपने लोकल एरिया का पूरा ध्यान रखना है, उसके इंटरेस्ट को सेव करना है। ठीक है, रेगुलेटरी। रेगुलेटरी मतलब वही कोई पॉलिसीज वगैरह बन गई, या फिर सिंपल शब्दों में देखें कि हर एक लोकल अथॉरिटी, एक लोकल कॉलोनी में या लोकल एरिया में, जैसे मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि ना गार्बेज कलेक्शन वाली गाड़ियां आती हैं, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने एंड ऑल दैट, राइट। तो वो प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं, है ना, स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर्ली चल रही है कि नहीं, तो ये रेगुलेट कर रहा है, ये देख रहा है कि प्रॉपर्ली काम हो रहा है कि नहीं। क्वासी जुडिशियल मतलब अगर जैसे कोई डिसीजन लिया गया मतलब अथॉरिटी के बेसिस में या कमेटी के अंदर ही, लोकल कमेटी के अंदर, या कोई छोटा मोटा मुद्दा हुआ लोकल लोकेलिटी में, तो उसको कुछ ऐसा उसने डिसीजन लिया। क्वासी जुडिशियल मतलब प्योर जुडिशियल नहीं, जो जुडिशरी के बाहर है बेसिकली। ठीक है, जुडिशरी अपना क्या, जहाँ पे जज और कोर्ट्स होते हैं उसके बाहर का उसने अगर थोड़ा बहुत कुछ काम किया एंड ऑल, तो वो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज मतलब भाई जैसे पुलिस थाना एंड ऑल है वो प्रॉपर्ली अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट अपना काम प्रॉपर्ली कर रहा है कि नहीं। तो छोटे लेवल पे तो यही देखेगा, उसके बाद बड़े लेवल पे हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या काउंसिल या सिटी काउंसिल देखती है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी लीडरशिप एंड एंगेजमेंट।
आई टोल्ड यू ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम जो काउंसलर का होता है वो यही होता है कि उसका जो लोकल एरिया है वो उसे प्रॉपरली रिप्रेजेंट करे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, ठीक है, उसके इंटरेस्ट को सेव करे, अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सेव करे, ठीक है। सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ अ काउंसलर। मूविंग फर्दर, अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ठीक है। अब जो हमारा काउंसलर इंचार्ज था उसका बेसिक काम क्या निकल के आया कि जो वार्ड एरिया है उसके इश्यूज को देखना, है ना, उसके अपने वार्ड का बेसिकली ध्यान रखना। ध्यान कैसे रखेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं वहाँ के लोगों की लिविंग को, उसको ध्यान में रखना। दूसरा चीज हो जाएगा कि भाई उसके रिगार्डिंग उसने कोई पॉलिसीज फ्रेम की हैं या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं तो उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं उसको देखेगा। लेकिन जब वो पॉलिसीज बन गई या कुछ भी जैसे डिसीजन आया या कुछ सजेशन दिया गया कि हमें ये चीज करनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक वार्ड में ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे गार्बेज कलेक्शन की गाड़ी नहीं आती, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या किया जाए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपकी ही बुक में एक एग्जांपल है गंगाबाई का, है ना। इसमें क्या था कि जो सेम प्रॉब्लम थी कि एरिया में गार्बेज डंपिंग की प्रॉब्लम चल रही थी कि कोई भी लोग क्या करते थे अपना गार्बेज रास्तों में ही डाल दे रहे थे भाई, जो भी गंदगी निकलती थी उसको बाहर डाल दिया जाता था, एंड देयर वाज नो वन टू कलेक्ट दैट एंड लाइक डंप एट द प्रॉपर प्लेस, राइट। तो अब गंगा बाई को प्रॉब्लम हुई कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उसने क्या किया, वो गई अपने एरिया के वार्ड के पास, मतलब काउंसलर इंचार्ज के पास, और उससे जाके उससे अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। तो काउंसलर इंचार्ज क्या करता है, उसने उसकी बात को सुना, उसने इश्यू को लिया, उसने इसके रिगार्डिंग डिसीजन लिया कि ओके आई नीड टू टॉक टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर दैट, एंड उसके बाद क्या किया, उसने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके काम किया। अब मुझे एक चीज बताओ, बोर्ड ने ये सारा काम तो किया, बोर्ड मतलब काउंसलर इंचार्ज ने ये सारा काम किया, बट क्या वो खुद साफ करने थोड़ी ना बैठ गया, वो खुद गार्बेज कलेक्शन वाली गाड़ी चलाने थोड़ी ना बैठ गया, इजंट इट। उसने क्या किया, उसने जाके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बताया एंड ही मेक देम डू द वर्क, राइट। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की जरूरत होती है कि जो काउंसलर इंचार्ज कुछ काम करवाना चाह रहा है तो वो अकॉर्डिंगली करे, ठीक है। अब इसको अपन समझते हैं। हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड एज अ म्युनिसिपल कमिश्नर। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है वो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है। मेयर क्या होता है, मेयर में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो वार्ड कमिटी के मेंबर्स अपना एक हेड चुनते हैं, ठीक है। तो 8 स्टेट्स में अपनी लोकल पीपल चुनते हैं और बाकी जगह पे जो वार्ड कमिटी है वो खुद ही चुनती है। मेयर क्या है, ही इज जस्ट द टाइट्यूलर हेड ऑफ द सिटी इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। टाइट्यूलर हेड है मतलब उसका ऐसा ज्यादा काम नहीं, बस नामी नाम के लिए है उसे, ठीक है, वो कुछ बोल देगा कर लेगा, लेकिन जो एक्चुअल वर्क होता है वो म्युनिसिपल कमिश्नर ही करता है, और जो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है वो अपॉइंट होता है। अब इस चीज को ध्यान से समझना, बोर्ड के मेंबर्स या बोर्ड का काउंसलर इंचार्ज वो इलेक्ट होता है, इलेक्ट मतलब लोग वोट करके उसे सिलेक्ट करेंगे, लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर अपॉइंट हो रहा है। अपॉइंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट उसे बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर देती है, और वो कब देती है, जब गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम्स निकलते रहते हैं। आपने शायद अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर्स या कजिन्स या मे बी अंकल आंट मदर फादर किसी से भी कुछ ये सुना होगा कि अच्छा हाँ गवर्नमेंट की वैकेंसीज आ गई, या गवर्नमेंट के एग्जाम है, या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम के बारे में सुना होगा आपने, या फिर आईएएस एग्जाम्स यूपीएससी एंड और ये सारे एग्जाम सुने होंगे, या फिर हर एक स्टेट के अपने पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, है ना। और इसी तरीके से सेंट्रल लेवल पे अपने पास यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो वो एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। तो उनके जो लोग सिलेक्ट होते हैं या जो वो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो वो अपॉइंट होते हैं इन सारे ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट्स में जहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्क करती हैं, ठीक है। तो म्युनिसिपल कमिश्नर क्या है, ही इज अपॉइंटेड, अपॉइंटेड मतलब बाकायदा पेपर होगा, इंटरव्यू होगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला जाएगा, ठीक है, आपकी एक सैलरी आएगी, दिस इज द थिंग। A municipal commissioner is appointed by the state government from the Indian Administrative Service and mostly from state civil services, ठीक है। आईएएस लाइक यूपीएससी वाला चीज हो गया, स्टेट सिविल सर्विसेज अपने यही जो पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ऑल हैं, टू हेड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन में बेसिकली अपने वार्ड्स कमिटी, मेयर
और जो अपॉइंटेड लोग हैं वो सब आते हैं और उन लोगों ने मिलकर कोई डिसीजंस वगैरह लिया है तो यही लोग होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड प्रिपेयर इट्स एनुअल बजट। एनुअल बजट पैसा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आफ्टर ऑल एट द एंड, राइट। अब आप बताओ, नहीं तो कैसे कोई भी चीज मैनेज हो, है ना। तो ये जो एनुअल बजट बनता है ना, इसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि अपनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ही करती हैं। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बोल दूं कि दो आई एम यूजिंग द वर्ड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस अगेन एंड अगेन, बट एज पर द रिस्पेक्टिव एरियाज वो रिप्लेस हो जाएगा म्यूनिसिपल काउंसिल और सिटी काउंसिल वर्ड से, ठीक है। अभी फॉर बेटर डिलीवरी ऑफ माय स्टेटमेंट्स आई एम यूजिंग द टर्म म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। लेकिन जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो म्यूनिसिपल काउंसिल वहाँ पे लग जाएगा और जहाँ पे बहुत कम हो जाएगी तो सिटी काउंसिल लग जाएगा, ठीक है। ओके, सो आई थिंक यू गॉट इट। एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है जिसकी की बहुत इम्पोर्टेंस रखती है किसी भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में, जो कि बोर्ड की काउंसलर इंचार्ज एंड ऑल करते हैं, ठीक है। ठीक है, मूविंग फर्दर नाउ, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस क्या है? सबसे पहली चीज अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग। मतलब इसका क्या, अर्बन प्लानिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अर्बन एरिया का जो लैंड है और उस पर जो रिसोर्सेज हैं, एयर वाटर एंड ऑल, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो कि लोगों को एक एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके फॉर लिविंग, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? अपनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। देन रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, द सेम थिंग कि भाई लैंड को किस तरीके से डिवाइड करना है, कौन सा एरिया में क्या रहेगा इन ऑल, वो सब भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। कौन सी बिल्डिंग्स कहाँ बननी है, जैसे कोई हॉस्पिटल बनना है तो कहाँ बनना है, कोई गवर्नमेंट स्कूल बनना है तो कहाँ बनना है, कितना बड़ा बनना है, ठीक है, इस सब का ध्यान रखा जाता है। देन प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। इसी के साथ लाइक आपने देखा होगा कि ना जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो क्या करती है, प्लॉट्स काटती रहती है, फिर ना उनके ऑप्शंस होते रहते हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैसा कमाती है, ठीक है। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट, मतलब अब सोशल डेवलपमेंट में मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, लाइक आई बिलोंग टू कोटा, ठीक है। हमारे कोटा में लाइक दशहरा का मेला बहुत फेमस है। दशहरा इज अ फेस्टिवल, आई होप यू ऑल नो अबाउट इट, like in which that devil Ravan was killed by Lord Ram, right? So in Dashera we have a mela over here, एक fair organize किया जाता है by the government, और उसमें क्या होता है, पहले क्या होता था लाइक, मतलब it was like just a place was there and the mela was organized over there, but अब last 2-3 years से क्या हो गया है कि प्रॉपर कंस्ट्रक्शन मिल गया है मेले के लिए। जैसे प्रॉपर शॉप्स बना दी गई हैं, प्रॉपर खाने के स्टॉल्स बना दिए गए हैं, फिर अम्यूजमेंट पार्क एंड ऑल, वो जो स्विंग्स एंड ऑल होते हैं वो सब रख दिया है, मेरी गो राउंड एंड एवरीथिंग, तो हर एक जगह को पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो इट्स अ काइंड ऑफ सोशल डेवलपमेंट, राइट। तो अब हम जो हमारा त्योहार है उसे और बेटर तरीके से मनाते हैं। सो दिस ऑल वर्क इज डन बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इवन हमारे यहाँ पर जो मेला होता है उसमें हर दिन का डिफरेंट डिफरेंट एक कोई प्रोग्राम भी कंडक्ट होता है, कभी कवि सम्मेलन होता है, कभी कॉमेडी शोज होते हैं लाइक स्टैंड अप कॉमेडीज वो होती हैं, कभी एक एक टाइम तक रामलीला भी चलती रहती है, फिर कोई कभी सिंगर आता है गाने के लिए, तो देर आर मेनी लाइक मेनी फंक्शंस आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन दैट। सो इट्स अ काइंड ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। देन वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पसेस। वाटर सप्लाई का एक इंपॉर्टेंट रोल है इसे कि घरों में कैसा पानी जाएगा, फिर उसकी रेट्स क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पसेस के लिए पानी का सप्लाई कैसे होना चाहिए। कभी कभी एक होता है ना टाइम पीरियड के लिए पानी को देते हैं कहीं कहीं पे, तो उसको पूरा मेंटेन करना, ऑर्गेनाइज करना। देन public health is all about like medical centers and all. Sanitation conservancy, it's all about like cleanliness and like वो जो सीवेज लाइन्स एंड ऑल, उनका प्रॉपर क्लीनलीनेस एंड और सब कुछ अच्छे से हो रहा है कि नहीं। then solid waste management, it's like all the fecal matters, like whether they are getting dumped properly or not. And basically like okay, a municipal corporation, it not only does the work of like having it does not only work for like collection of garbage and all, but also it's dumping, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना करना है एक तरफ से कचरा उठा के कहीं और डाल दिया तो फायदा क्या होगा फिर।
है ना। तो उसको प्रॉपर्ली उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना होता है कि कोई चीज रिसाइकल हो सकती है तो भाई रिसाइकल कर दो, कुछ नहीं हो पा रही है तो उसको जला के फिनिश करो एंड ऑल, राइट। सो दिस ऑल वर्क इज ऑल्सो टेकन केयर बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। देन फायर सर्विसेज अपनी है से अपनी फायर ब्रिगेड्स एंड ऑल, ठीक है। फायर सर्विसेज इवन ना इमरजेंसी की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। जैसे कभी होता है ना किसी के घर में कोई बड़ा सा सांप या कुछ ऐसा निकल गया, तो उस टाइम पे भी जो ये लोग होते हैं फायर सर्विसेज या फायरमैन जो होते हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दीज थिंग्स। सो इसमें भी क्या होता है, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। ओके, मूविंग फर्दर, लाइक अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। अब शहर में कहाँ पे गार्डन बनना है, कहाँ पे बच्चों के लिए गार्डन बनना है, कहाँ पे जॉगिंग पार्क बनना है, कहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क बनना है, तो इस तरीके की भी जो जानकारी एंड मेंटेनेंस होता है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। फिर safeguarding the interest of weaker sections of society including the handicapped and mentally retarded। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज भी होती हैं, जैसे मेंटली रिटार्डेड पीपल हैं या फिर हैंडीकेप्ड हैं, तो उनके रिगार्डिंग गवर्नमेंट कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना देती हैं। या फिर वीकर सेक्शन के रिगार्डिंग, जैसे कभी कभी होता है कि ना स्लम एरियाज को हटाना है तो उनके लिए प्रॉपर जगह निकाल दी जाती है और उनको वहाँ पे घर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो वीकर सेक्शन का भी ध्यान रखना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है। देन स्लम इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, है ना। अब स्लम इज अ बिग प्रॉब्लम, लाइक, है ना। और मुंबई का तो वी नो वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम एरिया इज देयर। तो ये उस स्लम एरिया को भी कैसे इम्प्रूव करना है, बिकॉज स्लम एरिया के जो लोग हैं वो इन सारी चीज़ों पे तो ध्यान नहीं दे सकते। दे आर नॉट एज मच लाइक efficient enough monetarily कि they can do something about their area or something. So it's the duty of municipal corporation only to do something for them only, for them, so that so their living can also be improved and can also be upgraded, right? देन नेक्स्ट इज अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। यही है कि भाई शहरों में बैगिंग एंड ऑल ये सब ज़्यादा ना हो जाए, बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे वेज लेबरर्स काम करते हैं, बैगिंग एंड ऑल, उस सब के रिगार्डिंग दे ट्राई टू implement more work for them, है ना। दे ट्राई टू ब्रिंग आउट मोर वर्क फॉर देम ताकि बेगिंग ना हो, है ना। कोई भी जैसे कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, उसमें इन्हें काम पे रख दिया ताकि ये लोग कमाएं भी और पॉवर्टी धीरे धीरे कम हो। पैसा कमाएंगे तो पैसा रोटेट होगा एंड इकोनॉमी इंक्रीज होगी अपनी, right? So these all are work of municipal corporation and there are more. Municipal corporation is just like burden with so many things, isn't it? Okay, चलो और देखते हैं क्या काम करती है ये। Provision of urban amenities and facilities such as parks, gardens, playgrounds, we already discussed this, ठीक है। Then promotion of cultural, educational and aesthetic aspects, ठीक है। अब जैसे वे culture and all, मंदिर वगैरह हो गए, या फिर एजुकेशन के रिगार्डिंग स्कूल्स बनाने। एस्थेटिक एस्पेक्ट्स मींस ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी। जैसे आपने देखा हो, जैसे मैं जयपुर का एग्जांपल लूँ, वहाँ पे एक बहुत सुंदर रोड है जेएलएन मार्ग के नाम से फेमस है। उसके सर्किल या चौराहा बहुत सुंदर है, उसके बाद उसका डिवाइडर बहुत सुंदर है, उसमें आपको एक ना राजस्थानी कल्चर का टच मिलेगा। आप जैसे जगह जगह देखोगे तो राजस्थानी पेंटिंग्स हैं। Even in my city, we have very beautiful chaurahas, like Ghatotkaч Chauraha is there, which you can see like in Badrinath ki Dulhania movie, and also like जो अपने जो पेंटिंग्स कभी कभी आपने देखी हो वो बनी हुई रहती हैं। सो ऑल दीज कम अंडर दिस ओनली, राइट। इसी के साथ आपने सेवन वंडर्स भी देखा हो, हम कोटा में है, तो इट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल नियर द लेक साइड, लाइक इट्स वेरी मच ब्यूटिफुल। So all these work is done by our municipal corporation only, right? Then there is like burials and burial grounds, or cremation grounds and electric crematoriums. Like every ritual, like for every culture, like for Muslims and Christians we have burial grounds, तो उसका मेंटेनेंस करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फॉर क्रिमेशंस, लाइक फॉर हिंदूज वी हैव क्रिमेशंस नाउअडेज, देयर इज लाइक इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम्स आर देयर। इलेक्ट्रिकली बॉडी को डिस्पोज किया जाता है आफ्टर द इंसिडेंट्स एंड ऑल। सो या
This all work is taken care by municipal corporation only. Then we have cattle pounds, prevention of cruelty to animals. मतलब वही जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स एनिमल्स एंड ऑल रहते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, गौशालाएं बनाई जाती हैं। तो ये सब भी काम कहाँ गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो गया। देन वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, ठीक है, कितने बर्थ हो रहे हैं एक दिन में या फिर एक एरिया में के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और कितने डेथ हुए, इस सब का भी कौन वो करता है, रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है, अपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। Then we have like public amenities including street lighting, parking lots, bus stops and public conveniences, है ना, सिंपल इनफ। लाइक जो स्ट्रीट लाइटिंग है या अपने पब्लिक एरियाज हैं, लाइक बस स्टैंड्स हैं या फिर रेलवे स्टेशन हैं या पार्किंग एरियाज हैं, बस स्टॉप्स एंड ऑल, वो उन सारी चीज़ों को रिगार्डिंग भी, मतलब वो कौन कितना कहाँ पे कौन सा बस स्टॉप होगा, कहाँ पे जैसे आपको ऑटो मिल सकता है इजीली, है ना, हर एरिया का अपना रहता है, हर सिटी में पता रहता है कि अच्छा हाँ वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से ऑटो मिल जाएगा यार, अच्छा नहीं वहाँ से बस मिल जाएगी, 11 नंबर की बस पकड़ते हैं डायरेक्ट वहाँ पहुँचेंगे, right? So all these things are taken care by municipal corporation. Then regulation of slaughterhouses and tanneries, like the butcher houses and all, right? जहाँ पे की मीट एंड ऑल मिलता है, कैनरीज लाइक जहाँ पे स्किन, एनिमल स्किन के रिगार्डिंग वर्क होता है और, तो उस सब का भी कौन ध्यान रखती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ध्यान रखती है। माय गॉड, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डज सो मच ऑफ वर्क, इजंट इट? और देखो ये जो सारे काम हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कितना कनेक्टेड है। सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? एंड आई थिंक अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि क्योंकि ये सारी ड्यूटीज हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो इन सब के रिगार्डिंग कभी भी आपको प्रॉब्लम हुई तो आप सबसे पहले कहाँ जा सकते हो, अपने काउंसलर इंचार्ज के पास जा सकते हो, अपने एरिया के काउंसलर इंचार्ज के पास जा सकते हो। वहां बात नहीं बने तो आप मेयर से कांटेक्ट कर सकते हो, वहां बात नहीं बने तो आप म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास जा सकते हो, right? So we got the remedy also if anything doesn't happen properly in our areas. So just be vigilant कि कौन कौन से काम हो रहे हैं और कौन कौन से काम नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मूविंग फर्दर, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पैसा कहाँ से कमाती है, तो भाई इतने सारे पॉइंट्स तो लिखे हैं, इसके बदले मैं आपको केवल 3 मेन पॉइंट्स बताती हूँ। पहला तो है जो टैक्स कलेक्ट होता है, ठीक है, उस एरिया से। दूसरा हो जाएगा जो स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट कर देती है, ग्रांट मतलब जो उसने पैसा उनको दिया फॉर एन ईयर और फॉर एनी प्रोजेक्ट, है ना। तीसरा हो जाता है कोई भी पेनल्टी या कुछ इस तरीके से फी वगैरह अगर कलेक्ट हुई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो वो भी क्या हो जाएगा, उसका रेवेन्यू सोर्स हो जाएगा। जैसे वाटर सप्लाई बिल्स हो गए, वाटर सप्लाई का के लिए जो पैसा मिलता है वो। देन प्रॉपर्टी टैक्सेस, देन रेंट्स फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ओन मार्केट्स, हाउसेस, प्लाजास। कुछ प्रॉपर्टीज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी तो ओन करती है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसके मार्केट्स, हाउसेस, प्लाजाज एंड ऑल, वो सब क्या हो जाएंगे, उनके रेंट, वो उसका रेवेन्यू सोर्स हो गया। देन टैक्सेस फ्रॉम कमर्शियल व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन द सिटी, सिटी उस एरिया में ही कोई भी कमर्शियल व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल मतलब वो व्हीकल जो कि लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो विच इज रजिस्टर्ड इन द सिटी। देन ग्रांट्स प्रोवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, सो दीज आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आ सकता है कि यार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी अपने मार्केट हाउसेस या प्लाजास होते होंगे क्या, तो यस, बिकॉज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज इटसेल्फ एन ऑर्गेनाइजेशन इन इटसेल्फ, राइट। वो अपने आप में ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि एक कंपनी होती है ना, कंपनी की अपनी बिल्डिंग होती है, कंपनी एक लीगल एंटिटी के नाम से जानी जाती है, तो मतलब a company can own property, a company can dispose property, though it works with the help of uh, human human beings, right? जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओन कर सकती है मार्केट प्लेस को, हाउसेस को, प्लाजास को, बट इट इज वर्किंग विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स ओनली, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। Next is clean water, clean city. Like it is one of the important duties of the municipal corporation to provide its people with clean drinking water and to make the city clean. ठीक है, अब देखो एक तरफ तो देखो कैसे लोग झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं, दे आर मेकिंग द सिटी क्लीन, राइट। सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू क्लीन द सिटी। मैं आपको गंगाबाई का इंसिडेंट ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ कि जो आपकी बुक में दे रखा था कि कैसे उन लोगों ने
अपने एरिया को क्लीन करवाया काउंसलर इंचार्ज के पास जा करके, है ना। और आपको मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि इंदौर, द सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, लाइक इट इज कंसिडर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी फोर्थ टाइम इन रो। सो दिस इज समथिंग ट्रिमेंडस एंड रिमार्केबल। एंड इसी के साथ ही आप ये देखिए कि ना जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया, वो क्या निकल के आया, दैट इज ऑफ ग्रीन कलर डस्टबिन एंड ब्लू कलर डस्टबिन। तो आप बता सकते हो कि ग्रीन कलर डस्टबिन और ब्लू कलर डस्टबिन का क्या यूज होता है? Okay, I think many of you know, but maybe a few of you doesn't know. Doesn't matter. I'll let you know. Green dustbin is for like जो गीला कचरा होता है उसके लिए यूज में होता है, और जो अपना ब्लू डस्टबिन होता है दैट इज फॉर सूखा कचरा। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखा जाएगा? इसको याद ऐसे रखा जाएगा कि भाई जब पानी प्योर होता है ना तब वो ब्लू होता है, राइट। गाना नहीं अपना, आज ब्लू है पानी पानी पानी, यस। तो इट्स लाइक दिस। तो जब पानी प्योर होता है तब वो ब्लू होता है, लेकिन जब पानी गंदा हो जाता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है थोड़ा सा, राइट। सो पानी ग्रीन कलर का हो गया मतलब वेट हो गया, गीला हो गया, राइट। सो तो गीला कचरा कहाँ जाएगा? ग्रीन में जाएगा, और सूखा कचरा अपना जाएगा ब्लू में। ठीक है। तो इजी ट्रिक टू रिमेम्बर why, like what is the purpose of green dustbin and what is the purpose of blue dustbin? ओके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर प्रॉपर एंड क्लीन सप्लाई ऑफ वाटर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी हैव स्टडीड। अब आगे देखते हैं। ओके, सो फाइनली वी गॉट द स्लाइड जो हमें इंडिकेशन दे रही है कि हमें वापस से अपनी कौन सी स्लाइड पे जाना है। हमें अपनी स्लाइड पे जाना है, स्लाइड नंबर 3 पे। ठीक है। तो और हमारी स्लाइड नंबर 3 कौन सी है? ये रही। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि क्या हम बता सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया क्या है? डेफिनेटली बता सकते हैं। सबसे पहले अपना पास क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके अंदर आएगी स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स में हमारे पास कौन डिविजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज हैं। अर्बन एरियाज के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एज पर द basis of population we divided them into municipal corporation, municipal council and city councils, और उन सब के better administration के we divided them into wards। ठीक है। municipal corporation, municipal council क्या है समझ चुके हैं हम। wards क्या होते हैं? जो ward छोटी सबसे smallest unit जो urban area की होती है that is called as wards। उसका head होता है councillor in charge, जो कि क्या करता है, जो कि अपनी लोकेलिटी के लोकल पीपल के द्वारा इलेक्ट होता है। और जैसे कि एक अर्बन एरिया है जिसमें कि 10 वार्ड हैं, तो उसके 10 काउंसलर इंचार्ज होंगे और वो सब मिलकर के एक वार्ड कमेटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर बनाएंगे। ठीक है। वो सब वार्ड कमेटी एक अपना हेड बनाएंगे मेयर के रूप में। केवल जो 8 स्टेट्स हैं वहां पे मेयर का सिलेक्शन या इलेक्शन जो होता है वो लोकल पीपल करते हैं। ठीक है। कौन कौन से थे वो? वो थे अपने बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है। उसके बाद जो ये वार्ड्स हैं, काउंसिल इंचार्ज आते हैं, ये वर्क करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के थ्रू, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है थ्रू वेरियस एग्जाम्स। ठीक है। और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है वो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है, और जो मेयर जो होता है वो टाइट्यूलर हेड होता है। ठीक है। हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बहुत सारे काम देख लिए थे, एंड दे आर बेसिकली रिलेटेड टू ऑल द डेली लाइफ वर्क्स ऑफ द पीपल, है ना। जो भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने वाली चीजें होती हैं उन सब से रिलेटेड था। रोड्स हो गए, क्लीनलीनेस हो गई, वाटर सप्लाई हो गया, ठीक है, बेसिक अमेनिटीज हो गई, इसी के साथ गार्डन्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज एंड ऑल, ये सब काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करते हैं। रेवेन्यू सोर्सेज में मेन सोर्सेज 3 हैं: टैक्सेस, grants from state government, and third is fees or bills or any penalties which are due to the municipal corporation from the local people. Then water supply is an important role. It's an important work for the municipal corporation, and cleanliness, like every municipal corporation is responsible for for cleaning the city. Okay, so these points we have already covered and we got to know कि ये basically है क्या। इसी के साथ देखते हैं कि अब जब हम अपनी स्लाइड नंबर 3 कवर कर चुके हैं, तो अब इसके बाद क्या आने वाला है, और मेरे को लग रहा है शायद आपको पता है कि इसके बाद क्या आएगा।
Yes, it's a big thank you from me to you for listening to me and understanding the concept well. And if you have any doubt, just do let me know. We will clarify the doubt. If you want the answer in the comment section, then you can post your query there. And if you want to clarify it during the live session, you can definitely come during the live session and we'll take that query. And I just hope कि नेक्स्ट टाइम अब हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के लाइव सेशन में मिले, वहाँ पे अपन मेंटी करेंगे। इन दोनों एडमिनिस्ट्रेशन का एक छोटा सा क्विक रिकैप लेंगे एंड आई होप उससे पहले आप ये वीडियोस कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए कोई होमवर्क, just go through the slides very properly and go through the videos, and also ask your friends to subscribe to Unacademy channel 6 so that you can share your knowledge and also we can have more fun with your friends also. Okay, so with this I sign off and I say sayonara, bye bye.